Hi friends, I am your host Mohammad Shahid Imran, and today I bring a very famous story, Button Button, for you, which is written by Richard Matheson. Button Button is the story of a woman who is of some greedy nature, and this story has a big moral. Of course, when you hear complete story, you must be gain some knowledge, some moral lessons from this story. So let's start this story now, and I want to tell you that this story will be in English as well as in Urdu for the Urdu readers and listeners. So we start this story. The package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37th Street, New York 10016. Norma picked it up, unlocked the door, and went into the apartment. It was just getting dark. After she put the lamb chops in the broiler to open the package, she sat down. पैकेट सामने वाले दीवार के नज़दीक पड़ा था। ये टेप से बंद किया हुआ एक मुकाब शक्ल का डिब्बा था। उनका नाम और पता हाथ से यूं लिखा हुआ था, मिस्टर और मिसिज आर्थर लीवस, 217E, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 1000016। नॉर्मा ने उसे उठाया, दरवाजे का ताला खोला और रिहायशी कमरे में चली गई। अंधेरा अभी छा ही रहा था। बकरे या भेड़ के गोश्त की चांपों को गोश्त भूनने वाली आहिनी जाली पर रखने के बाद नॉर्मा पैकेट को खोलने के लिए नीचे बैठ गई। इनसाइड द कर्टन वाज अ पुश बटन fastened to a small wooden box. A glass dome covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the unit over and saw a folded piece of paper, scotch tape to the bottom of the box. She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. Norma put the button unit beside her on the couch. She reread the typed note, smiling. A few moments later, she went back into the kitchen, make the salad. गत्ते के डिब्बे के अंदर की तरफ डिब्बा को दबाने वाला एक हिस्सा यानी बटन मौजूद था, जो एक छोटे से लकड़ी के बने हुए संदूकचे से चस्पा किया हुआ था। शीशे के बने हुए एक गुंबद से बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे उस जगह मुकफल किया हुआ था। उसे यूनिट बटन वाले हिस्से को उल्टाया और संदूकचा के पैंदा से शफाफ टेप के साथ चिपकाए हुए कागज़ को एक तयशुदा लपेटे हुए टुकड़े को देखा। उसने इसे खींच कर उतारा। उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा ने बटन को दबाने वाले हिस्से को सोफ़ा आरामदेह बिस्तर पर अपने करीब रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए तहरीर शुदा लिखे हुए नोट को दोबारा पढ़ा। चंद कुछ मिनटों के बाद वो सलाद बनाने के लिए वापस बावर्ची खाने में चली गई। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock. I will get it, Norma called from the kitchen. Arthur was in the living room reading. There was a small man in the hallway. He removed his hat as Norma opened the door. Mrs. Lewis, he inquired politely. Yes, I am Mr. Stewart. Oh yes. Norma repressed a smile. She was sure. No, it was a sales pitch. May I come in? asked Mr. Stewart. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। मैं उसे देख लेती हूँ। आर्थर लाउच में बैठा अखबार पढ़ रहा था। वहाँ अंदर दाखिल होते हुए कैमरे में छोटे कद का एक आदमी था। यूं ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो
उसने अपना हैट उतारा और शाइस्तगी से बोला, क्या आप मिसेस लीवस हैं? जी हाँ, मैं ही मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। और जी हाँ, नॉर्मा ने एक मुस्कुराहट को दबाया। अब वो पुरयकीन थी कि ये एक कारोबारी अंदाज़े गुफ्तगू था। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? आई एम rather busy, Norma said. Don't you want to know what it is? Norma turned back. Mr. Stewart's tone had been offensive. No, I don't think so, she replied. It could prove very valuable, he told her. Monetarily, she challenged. Mr. Stewart nodded. Monetarily, he said. Mr. Norma frowned. She did not like his attitude. What are you trying to sell? She asked. I am not selling anything, he answered. नॉर्मा ने कहा, मैं कदरे कुछ मसरूफ़ हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये बटन यूनिट क्या है? नॉर्मा पीछे लौट गई। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना था। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। उसने उसे बताया, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है। उसने चैलेंज किया, क्या माली तौर पर? मिस्टर स्टीवर्ट ने सर हिलाकर कहा, हाँ, माली तौर पर। नॉर्मा ने त्योरी चढ़ाई। उसने ये रवैया उसे पसंद नहीं आया। उसने पूछा, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. Oh, the Arthur pointed toward the living room and smiled. What is that gadget, anyway? It would not take long to explain, replied Mr. Stewart. May I come in? If you are selling something, Arthur said. Mr. Stewart shook his head. I am not. Arthur looked at Norma. Up to you, she said. He hesitated. Well, Why not? He said. तो आर्थर लाउज बैठक से बाहर निकला। क्या कोई गड़बड़ है? मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारफ़ कराया। अच्छा, तो आप हैं? आर्थर ने बैठक की तरफ इशारा किया और मुस्कराया। ताहम वो छोटी सी मशीन है, क्या है? मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मैं वजाहत करने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? आर्थर ने कहा, अगर तुम कोई चीज़ बेच रहे हो तो। मिस्टर स्टीवर्ट ने सारा लाया, मैं ऐसा नहीं कर रहा। आर्थर ने नॉर्मा पर निगाह डाली। उसने कहा, इस बात का दारोमदार आप पर है। उसने तजब्बुज़ महसूस किया, यानी उलझन महसूस की। उसने कहा, अच्छा, क्यों है, क्यों नहीं? They went into the living room and Mrs. Stewart sat in Norma's chair. She reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. Inside here is the key to the Bell unit home. He set the envelope on the chair side table. The bell is connected to our office. What it is for? Asked Arthur. If you push the button, Mr. Stewart told him, somewhere in the world, someone you don't know will die, in return for which you will receive the payment of $50,000. Norma stared at the small man. He was smiling. वो लाउंज में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने कोट के अंदर की जेब से एक छोटा सा बंद किया हुआ लिफाफा बाहर निकाला। उसने कहा, यहाँ इसके अंदर गुंबदनुमा घंटी के यूनिट में एक चाबी है। उसने लिफाफे को कुर्सी के साथ वाले मेज़ पर रख दिया। घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। आर्थर ने पूछा, ये किस लिए है या इसका मकसद क्या है? मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, अगर आप बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई आदमी जिसको आप जानते भी नहीं होंगे मर जाएगा, जिसके एवज़ आपको $50,000 की एक अदायगी वसूल की होगी। नॉर्मा ने छोटे कद वाले आदमी को मुतवातर गौर से देखा और मुस्करा रहा था। What are you talking about? Arthur asked him. Mr. Stewart looked surprised. But I have just explained, he said. Is this a practical joke? Asked Arthur. Not at all. The offer is completely genuine.
You are not making sense, Arthur said. You expect us to believe. Who do you represent? Demanded Norma. Mr. Stewart looked embarrassed. I am afraid I am not at liberty to tell you that, he said. However, I assure you, the organization is of international scope. आर्थर ने उससे पूछा, आप किसके मुताबिक बात कर रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ट हैरत ज़दा दिखाई दिया। उसने कहा, मगर मैं तो अभी ये वजाहत कर चुका हूँ। आर्थर ने पूछा, क्या ये एक अमली मजाक है? बिल्कुल नहीं, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है। आर्थर ने कहा, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप हमसे यकीन करने की तवक्को रखते हैं? नॉर्मा ने तकाजा किया, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? मिस्टर स्टीवर्ट सख्त परेशान दिखाई दिया। उसने कहा, मुझे डर है कि मैं ये आपको बताने में आज़ाद नहीं हूँ, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैनुल-अक़वामी दायरा-कार की हामिल है। आई थिंक you had better leave, Arthur said, standing. Mr. Stewart rose. Of course, and take your button unit with you. Are you sure you would not care to think about it for a day or so? Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hands. He walked into the hall and pulled open the door. I will leave my card, Mr. Stewart said. He placed it on the table by the door. आर्थर ने खड़े होकर कहा, मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मिस्टर स्टीवर्ट उठ खड़ा हुआ, बेशक अपना आला बटन अपने साथ ले जाइए। क्या आप यकीनी तौर पर 1 या 2 दिन के लिए इसके मतलब सोचने की फ़िक्र नहीं करना चाहते? आर्थर ने आला बटन और लिफाफा को ऊपर उठाया और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में ठोंस दिया। वो हाल में गुजरता हुआ गया और दरवाजे को खींचकर खोला। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, मैं अपना कार्ड छोड़कर जाऊंगा। उसने उसे दरवाजे की करीब मेज़ पर रख दिया। When he was gone, Arthur tore it into half and tossed the pieces into the table. Norma was still sitting on the sofa. And what do you think it was? She asked. I don't care to know, he answered. She tried to smile but could not. Arthur, not you curious at all? No. He shook his head. After Arthur returned to his book, Norma went back to the kitchen, finished washing the dishes. Why would not you talk about it? Norma asked. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. He looked at the reflection of Norma in the bathroom mirror. जब वो चला गया तो आर्थर ने इसे एक बयान से 2 हिस्सों में फाड़ा और टुकड़ों को मेज़ पर लहरा दिया। नॉर्मा अभी तक सोफ़ा पर बैठी हुई थी। उसने पूछा, आपके ख्याल में ये क्या चीज़ है? उसने जवाब दिया, मैं जानने की परवाह नहीं करता। उसने हंसने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना कर सकी। क्या आप बिल्कुल तजस्सुस नहीं रखते? नहीं, उसने सार को जुम्बश देकर कहा। आर्थर के अपनी किताब की तरफ जाने के बाद नॉर्मा बावर्ची खाना में चली गई और उसने प्लेटों को साफ़ करने का काम ख़त्म किया। नॉर्मा ने पूछा, आप इसके मुतल्लिक़ बात क्यों नहीं करेंगे? जब आर्थर ने अपने दांतों को साफ़ किया तो उसकी निगाहें इधर उधर मुंतकिल हुई। उसने गुस्ल खाने के आईने में अपने अक्स को देखा। Does not it intrigue you? It offends me, Arthur said. I know, but Norma rolled another curl in her ear. Does not it intrigue you too? You think it's a practical joke? She asked as they went into the room. If it is, it's a sick one. Norma sat on her chair and said, maybe it's some kind of psychological research. Arthur shrugged. Could be. Maybe some eccentric millionaire is doing it. Maybe. Would not you like to know? Arthur shook his head. Why? Because it's immoral, he told her. Norma slid beneath the cover. Well, I think it is intriguing, she said. Arthur turned off the lamp. Good night, he said. Norma closed her eyes. $50,000, she thought. क्या ये आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता? आर्थर ने कहा, ये तो मुझे
परेशान करता है, खौफजदा करता है। मैं जानती हूँ, मगर नॉर्मा ने बालों में बाल डालने वाला एक और कंघा अपने बालों में घुमाया। क्या ये भी आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता? जब वो कमरे में चले गए तो उसने पूछा, क्या आपके ख्याल में ये एक अमली मजाक है? अगर ये है तो ये एक बुरा मजाक है। नॉर्मा कुर्सी पर बैठ गई और कहा, मुमकिन है ये एक किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर ने कंधों को झुकाया, हो सकता है। मुमकिन है कि कोई जुनूनी लखपति इसे कर रहा हो। क्या आप जानना पसंद नहीं करेंगे? आर्थर ने अपने सर को हिलाया। क्यों? उसने कहा, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। नॉर्मा ने लिहाफ के नीचे हरकत की। उसने कहा, अच्छा, मैं सोचती हूँ ये तजस्सुस पैदा कर रहा है। आर्थर ने लैंप को बुझा दिया। उसने कहा, शब बखैर। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। $50,000 उसने सोचा। In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. Impulsively, she dropped them into her purse. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. Only Mrs. Stewart's name and telephone number were printed on the card. After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch taped the edges together. Why I am doing this, she thought. Just before 5, she dialed the number. Good afternoon, said Mr. Stewart's voice. सुबह जब नॉर्मा ने रिहायशी कमरा को छोड़ा तो उसके कार्ड के 2 टुकड़ों को मेज़ पर देखा। इसरारी तौर पर उसने उनको अपने पर्स में रख लिया। उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया और लिफ्ट में आर्थर के साथ शामिल हो गई। जब वो अपने काफ़ी के वक्फे पर थी, उसने कार्ड के दोनों टुकड़ों को अपने पर्स से निकाला और उनके किनारों को शफाफ टेप से आपस में जोड़ दिया। सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर छपा हुआ था। दोपहर के खाने के बाद उसने कार्ड के दोनों हिस्सों को अपने पर्स से दोबारा लिया और शफाफ टेप से किनारों को आपस में मिलाया। उसने सोचा, ये मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल 5 बजे से पहले उसने नंबर मिला दिया। मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ ने कहा, बाद दोपहर का सलाम। Norma almost hung up, but restrained herself. She cleared her thought. This is Mrs. Lewis, she said. Yes, Mrs. Lewis. Mr. Stewart sounded pleased. I am curious. That's natural, Mr. Stewart said. Not that I believe a word of what you told us. Oh, it's quite authentic, Mr. Stewart answered. Well, whatever, Norma swallowed. When you said someone in the world would die, what did you mean? Exactly that, he answered. It could be anyone. All we guarantee is that you don't know them, and of course that you would not have to watch them die. नॉर्मा तकरीबन फ़ोन बंद करने को थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। उसने अपना गला साफ़ किया। उसने कहा, मैं मिसेस लीवस हूँ। मिस्टर स्टीवर्ट खुशदिली से बोले, जी हाँ मिसेस लीवस, मैं मुतजस्सिस हूँ। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, ये फितरी बात है। जो कुछ आपने मैं बताया, मैं उसके एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं रखती। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, वो बिल्कुल हकीकी है। नॉर्मा ने बदले नख्वास्ता मान लिया। ठीक है, जो कुछ भी है। जब आपने कहा कि दुनिया में कोई मर जाएगा तो आपका क्या मतलब था? तो उसने जवाब दिया, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। ये आदमी कोई भी हो सकता है। वो सब कुछ जिसकी हम ज़मानत देते हैं वो ये है कि आप इसको नहीं जानते हो, और बिलाशुबा ये कि आपको इन्हें मरता हुआ भी देखना नहीं पड़ेगा। For $50,000, Norma said. That's correct. She made a scuffing sound. That's crazy. Nonetheless, that is the proposition, Mr. Stewart said. Would you like me to turn the button unit? Norma stiffened. Certainly not. She hung up angrily. The package was lying by the front door. Norma sighed as she left the elevator. Well, of all the nerves, she thought, she glared at the curtain as she unlocked the door. I just would not like it, she thought. She went inside and started dinner.
Later, she went into the front hall. Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. नॉर्मा ने कहा $50,000 के लिए? यही तो सच्ची बात है। उसने तंज़ी अंदाज में कहा, यह तो जुनूनी बात है। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, बहरहाल यही तजवीज़ है, क्या आप वाला बटन मुझे वापस करना पसंद करेंगी? नॉर्मा ने सख्त लहजे में कहा, यकीनन। उसने गुस्सा में फ़ोन बंद कर दिया। पैकेट सामने वाले दरवाजे के करीब पड़ा था। जैसे ही नॉर्मा लिफ्ट से बाहर निकली, उसने उसे सामने वाले दरवाजे के करीब पड़ा हुआ देखा। उसने ख्याल किया, अच्छा तो हिम्मत की है। जब उसने दरवाजे का ताला खोला, उसने गत्ते के डब्बे को मुतवातर गौर से देखा। उसने सोचा, मैं अभी इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। वो अंदर चली गई और खाना शुरू कर दिया। बाद अज़ां वो सामने वाले हाल में चली गई। दरवाज़ा खोलकर उसने पैकेट को ऊपर उठाया और उसने बावर्ची खाने में ले गई और उसे मेज़ के ऊपर छोड़ दिया। She sat in the living room looking out in the window. After a while, she went back into the kitchen to turn the cutlers in the broiler. She put the package in a bottom cabinet. She had thrown it out in the morning. Maybe some eccentric engineer is playing game with people, she said. Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. What does that mean? Let it go, he told her. Norma ate in silence. Suddenly she put her fork down. वो बैठक में बैठ गई और खिड़की में से बाहर देखने लगी। एक लम्हे के बाद वो गोश्त भूनने वाली आयनी जाली में गोश्त की चाबों को उल्ट पलट करने लगी। बावर्ची खाने में वापस चली गई। उसने पैकेट को अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में रख दिया। सुबह को वो उसे बाहर फेंक देने वाली थी। उसने कहा, मुमकिन है कोई जुनूनी लखपति लोगों से खेल रहा हो। आर्थर ने अपने शाइये यानी खाने के कमरे से नज़र उस पर डाली। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। उसने उसे नॉर्मा को कहा, इसे दफ़ा करो। नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। अचानक उसने अपना खाना खाने वाले कांटा नीचे रख दिया। उसने कहा, फ़र्ज़ करें ये एक हकीकी पेशकश है। फ़र्ज़ किया ऐसा ही है। All right, suppose it's. He looked incredulous. What would you like to do? Get the button back and push it? Murder someone? Norma looked disgusted. Murder? How would you define? If you would not even know the person, Norma said. Arthur looked astounded. Are you saying what I think you are? If it's some Chinese peasant 10,000 miles away, some diseased native in the Congo, how about some baby boy in the Pennsylvania? Arthur countered, some beautiful little girl on the next block. दोस्त है, फ़र्ज़ करें ये सच है। वो यकीन ना करने वाला दिखाई दे रहा था। तुम क्या करना पसंद करोगी? क्या तुम बटन वापस लोगी और उसे दबा दोगी? क्या किसी को कत्ल कर दोगी? नॉर्मा बेजार दिखाई दी। कत्ल? तुम इसकी वज़ाहत कैसे करोगी? आर्थर हैरान व शशदर दिखाई दे रहा था। नॉर्मा ने कहा, अगर तुम उस आदमी को जानते भी नहीं, क्या तुम वाकई वहीं कुछ कह रही हो जो मैंने तुम्हारे मतलब सोच रहा हूँ? 10 मील दूर अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान हो या कांगो में कोई बीमार पेशिंदा हो, पेंसिल्वेनिया में एक छोटा सा बच्चा, आर्थर ने रद्द-ए-अमल के तौर पर कहा, या अगले ही मोहल्ले की कोई खूबसूरत लड़की भी तो हो सकती है। नो, यू आर लोडिंग थिंग्स। द पॉइंट इज नॉर्मा, he continued, what's the difference? Who you kill? It's still murder. The point is, Norma broke in. If it's someone you have never seen in your life and never will see, someone whose death you don't even to have to know about, you still would not push the button. Arthur stared at her, appalled. You mean you would? $50,000 आर्थर, आप चीज़ों को मुबालगा मेज़िश से पेश कर रहे हैं। उसने बात को जारी रखा और कहा, नॉर्मा, असल बात यह है कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तुम मार डालोगी, कत्ल फिर भी कत्ल होगा। नॉर्मा ने बात काट कर कहा, असल बात यह है कि अगर ये वो शख्स हो जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा हो और कभी भी ना देखोगे,
कोई शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको जानना भी नहीं पड़ेगा, क्या फिर भी तुम ये बटन नहीं दबाओगे? आर्थर खौफजदा होकर उसे मुतवातर घूरे जा रहा था। क्या आपका मतलब है कि तुम करोगी? $50,000 आर्थर। What has the amount? $50,000 Arthur. Norma interrupted. A chance to take the trip to Europe we have always talked about. Norma, no. A chance to buy a cottage on the island. Norma, no. His face was white. She shuddered. All right, take it easy, she said. Why are you getting so upset? It's only talk. After dinner, Arthur went into the living room. Before he left the table, he said, I had rather not discuss it anymore, if you don't mind. Norma shrugged at okay with me. She got up earlier than usual to make pancake, eggs and tea for Arthur breakfast. रकम में क्या रखा है? रकम की क्या कदर कीमत है? नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा, आर्थर 50,000 की रकम है। एक मौका है हम यूरोप उस सैर के लिए चले जाएं जिसके बारे में हम हमेशा बातें करते हैं। नहीं नॉर्मा, हमारे लिए मौका है कि हम जजीरे में झोंपड़ी बना लें। नहीं नॉर्मा, उसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। वो लर्ज उठी, उस पर कुप की भी तारी हो गई। उसने कहा, इस बात को संजीदगी से न लो, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो फ़कत बातचीत है। खाने के बाद आर्थर बैठक में चला गया। बेशतर इसके कि उसने मेज़ को छोड़ा। उसने कहा, अगर तुम बुरा न मनाओ तो मैं इस पर मज़ीद बहस नहीं करना चाहता। नॉर्मा ने कंधों को उचकाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्थर के नाश्ता के लिए मीठे केक, अंडे और चाय बनाए गए। वो मामूल से कुछ जल्दी बेदार हो गए। What's the occasion? He asked with a smile. No occasion. Norma looked offended. I wanted to do it, that's all. Good, he said. I'm glad you did. She refilled his cup, wanted to show you I'm not. She shrugged. Not what? Selfish. Did I say you were? Well, she gestured vaguely. Last night, Arthur did not speak. All that talk about Button, Norma said. I think you, misunderstood me. In what way? His voice was hard. I think you felt, she gestured again, that I was only thinking of myself. Oh, I was not. Norma, आर्थर ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, ये कौन सा मौका है? कोई मौका नहीं। नॉर्मा खफा दिखाई दी। मैं ये करना चाहती हूँ, बस। अच्छा, उसने कहा, मैं खुश हूँ, तुम कर लो। उसने कहा, कप को दोबारा भरते हुए अपने कंधों को उचकाया। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? खुदगर्ज। क्या मैंने कहा कि तुम खुदगर्ज हो? उसने गैर वाज़ेह तौर पर इशारा किया। अच्छा, कल रात। आर्थर ना बोला। बटन के मुतल्लक वो तमाम बातचीत। नॉर्मा ने कहा, मैं सोचती हूँ कि तुमने मुझे गलत समझा। किस तरह? उसकी आवाज़ दफाई अंदाज में बोली। मेरा ख्याल है आपने महसूस किया। नॉर्मा ने दोबारा इशारा किया कि मैं सिर्फ अपने मुतल्लक ही सोच रही थी। हो, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। नॉर्मा, Well, I was not when I talked about Europe and cottage on an island. Norma, why are we getting so involved in this? I am not involved at all. She drew in a shaking breath. I'm simply trying to indicate that that I had like for us to go to Europe, like for us to have a cottage on the island, like for us to have a nicer apartment, nicer furniture, nice clothes, a car. Norma, we will, he said. When? He stared at her in dismay. Norma, when are you? He seemed to draw back slightly. Are you really saying? खूब, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। जब मैंने यूरोप की मतलब बात की, जजीरे पर एक झोंपड़ी की बात की, नॉर्मा हम इसमें इतने ज़्यादा क्यों मुलव्वस हो रहे हैं? मैं इसमें बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता। उसने एक लरसता हुआ सांस अंदर खींचा। मैं तो सिर्फ ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? ये कि मैं पसंद करती हूँ कि हम यूरोप जाएं। ये कि मैं पसंद करती हूँ कि हम यूरोप जाएं, जजीरे पर अपने लिए घर बनाएं,
अपने लिए एक ज़्यादा उम्दा रहायशी कमरा, ज़्यादा उम्दा फर्नीचर, ज़्यादा उम्दा कपड़े और एक कार पसंद करे। उसने कहा, नॉर्मा हम लेंगे कब? अफसरदगी से उसने उसे मुतवातर गौर से देखा। क्या तुम? वो थोड़ा पीछे होता हुआ दिखाई दिया। क्या वाकई तुम ये कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे आर probably doing it for some research project. She cut him off. That they want to know. I'm saying that they are probably doing it for some research project. She cut him off. That they want to know what average people would do under such a circumstances. That they are just saying someone would die in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. You don't really think they had killed somebody, do you? Arthur did not answer. She saw his hands trembling. After a while, he got up and left. When he had gone to work, Norma remained at the table, staring into her coffee. I am going to be late, she thought. She shrugged. What difference did it make? उसने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं ये कह रही हूँ कि ये काम किसी तहकीकी मंसूबे के तहत कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में उस दर्जे के लोग, आम लोग क्या करेंगे कि वो रद्द-ए-अमल का मुताला करने के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा सिर्फ ये देखने के लिए कि जुर्म, तशवीश या कोई और रद्द-ए-अमल है। क्या तुम वाकई नहीं सोच रहे कि वो किसी शख्स को हलाक कर देंगे? क्या तुम ऐसा सोचते हो? आर्थर ने जवाब ना दिया। उसने उसके हाथों को लरसते हुए देखा। एक लम्हा के बाद ऊपर उठा और चला गया। जब वो काम पर जा चुका तो नॉर्मा मेज़ पर रही और अपनी कॉफ़ी में घूर घूर कर देखती रही। उसने सोचा कि उससे देर हो रही है। उसने कंधों को झुकाया और उसने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? While she was stacking dishes, she turned abruptly, dried her hands and took the package from the button cabinet. Opening it, she stared at the button. How ridiculous, she thought. All this furor over a meaningless button. Reaching out, she pressed it down. For us, she thought angrily. She shuddered. Was it happening? A chill of horror swept across her thought. To get so worked up over nothing. To get so worked up over nothing. जब वो प्लेटों को इकट्ठी कर रही थी तो जब पीछे मुड़ी, अपने हाथ खुश किए और सबसे निचले खाने से पैकेट उठाया। उसे खोलकर उसने एला बटन को मेज़ पर रखा, लिफाफे से चाबी निकाली और शीशे के बने हुए गुंबद को हटाने से बेशतर वो उसे तवील देर वक़्त तक देखती रही। कितनी मुज़िकाखेज़ चीज़ है, उसने सोचा। एक बेमैनी बटन में इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी। हाथ आगे बढ़ाकर उससे नीचे दबा दिया। हमारे लिए, उसने गुस्से से कहा। वो लरज़ उठी। क्या ये सब कुछ वाक़या हो रहा है? दहशत की सर्द लहर तेज़ी से उसके आर पार गुजर गई। एक ही लम्हे में ये दहशत की आगे गुजर गई। उसने हकारत अमेज़ शोर किया। मुज़िकाखेज़, उसने सोचा, ज़रा सी चीज़ पर इस कदर परेशानी क्यों? She threw the button unit down and key into the waste basket and hurried to dress for work. She had just turned over the Super 6 when the telephone rang. She picked up the receiver. Hello, Mrs. Levis. Yes, this is the Lenox Hill Hospital. She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. The shoving crowd. Arthur pushed from the platform in front of the train. She was conscious, shaking her head but could not stop. As she hung up, she remembered Arthur's life insurance policy of $25,000 with double indemnity. नॉर्मा ने आला बटन, गुंबद और चाबी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। अभी शाम के वक्त खाने वाले सैंडविच की तरफ मुड़ी थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसने मिस्टर लीवर, उसने कहा,
मिस्टर लीवर्स, हाँ ये लेनिक्स हिल हॉस्पिटल है। उसने गैर हकीकी महसूस किया क्योंकि आवाज़ ने उसे ज़मीन दोज रेल के हादसे के बारे में इतला दी। धक्कम पेल करते हुए हुजूम ने आर्थर को प्लेटफार्म से धक्का देकर रेल के सामने फेंक दिया था। वो अपने सर को हिलाने के लिए बाखबर थी, लेकिन वो अपने आप को रोक न पाई। जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, उसे आर्थर की $25,000 की दुगनी हो जाने वाली बीमा पॉलिसी याद आ गई। No, she could not seem to breathe. She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket. There was no nails or screws visible. She could not see how it was put in together. Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split. She pulled the sides apart, cutting her fingers without noticing. There was no transistor in the box, no wires or tubes. The box was empty. She wailed with a gasp as the telephone rang. Stumbling into the living room, she picked up the receiver. Mrs. Livers, Mr. Stewart asked. It was not her voice shrieking, so it could not be. You said I would not know the one that died? My dear lady, Mr. Stewart said, do you really think knew your husband? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता था कि वो सांस नहीं ले सकती थी। उसने कदम उठाने की सख्त जिद्दोजहद की और बेहिसी की हालत में बर्ची खाने में चली गई। जब उसने रद्दी की टोकरी से आला बटन को हटाया तो किसी सर्द चीज़ ने उसकी खोपड़ी को दबा दिया। उसको कोई कील या पेज दिखाई न दिया। वो समझ न सकी कि उसे कैसे जोड़ा गया है। यकायक उसने सेंक के किनारे पर मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे ज़्यादा ज़ोर से मारा ताकि लकड़ी टूटकर बिखर गई। उसने टुकड़े खींचकर जुदा किए। उससे उसकी उंगलियां भी ज़ख्मी हो गईं और उसे पता भी न चला। संदूक में कोई ट्रांजिस्टर तारें मौजूद नहीं थीं। टेलीफोन की घंटी बजी तो वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ टेलीफोन की तरफ बढ़ी और टेलीफोन को जब उसने उठाया तो आवाज़ आई मिसेस लीवर्स। ये मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ थी। तो नार्मा जो कि बोल नहीं पा रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से उससे पूछा चीखने के अंदाज में कि तुमने तो कहा था कि मैं उसको नहीं जानती होंगी। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने आगे से जवाब दिया कि मैडम, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी? So our story is to end, and I hope you get the story to get the moral, and you learn how greed makes curse, how greed spoil our lives. So always stay away from greed, be humble in your life. तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी नार्मा की लालच ने उसका अपने ही घर उजाड़ दिया था। उसने लालच की, अपने शोहर के ख़िलाफ़ गई, उसका शोहर जो है वो मर गया। ये कहानी अलामती कहानी है, हकीकी नहीं है, लेकिन इसमें जो सबक है वो बहुत अहम है कि लालच में इंसान को इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वो दुनिया की आसाइश के लिए अपनी सबसे प्यारों को खो दे। तो आगे नेक्स्ट किसी और सबक मोज़ इंग्लिश उर्दू कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।